up is a question, I believe, from a newly breastfeeding mother, and she wants to ask me if can breastfeeding mothers take whey protein powders. So first, let's talk about protein and the importance of protein when you're breastfeeding and when you've just become a new mother. First of all, congratulations. Second thing, protein is very important, during the time of lactation, because protein helps in building tissues, repairing tissues, and connecting tissues. So it directly impacts the health and growth of the baby child also. So one thing is that protein is very important and is safe to take. Second thing, जब lactation हो रहा होता है, during this process the protein intake, the requirement of your body increases. It increases from up to 0.8 kilograms to 1.1 kilograms depending upon your body weight also sometimes. But yes, during lactation आपका protein का intake भी requirement भी बढ़ जाता है, so you have to take care of that also. The third thing is, now we come to the protein powder. So guys, protein powder basically जो उसका base होता है, that is whey. It is made from whey, and whey is of course a source from all our cheese, dairy, milk products जो भी होते हैं, उससे हमें whey मिलता है. That component is safe to take. Now प्रोटीन पाउडर्स में और भी एडेड आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं, कभी कभी फ्लेवर्स होते हैं, देन वी हैव अमाइनो एसिड्स एंड स्टफ. सो बहुत सारी चीज़ों का अमेलगमेशन होता है प्रोटीन पाउडर में. सो इट्स स्टिल अ क्वेश्चन वेदर वी कैन और नॉट टेक, वेदर इट इज़ सेफ और नॉट सेफ. बट आई वुड रिकमेंड यू टू इज़ नॉट skip protein, but of course not really depend upon a lot of protein powders. Stick to your basics, stick to your home food, stick to all the sources of protein that are available locally, from fruits and vegetables and all the kinds of dairy products that we have, because that is what you need right now, and don't really need to switch to a protein powder immediately, not until 6 months apart, 6 months from the day you have given birth to your baby child. So yes, moving on, the next question, how to gain body weight. Guys, this is a very subjective question, I believe. एंड वेट गेन कैसे करना है? ऑफ कोर्स जब हमें वेट लूज़ करना, इट्स अ वेरी सिंपल साइंस. वेट लूज़ करना है तो कैलोरी डेफिसिट में जाओ, और गेन करना है तो कैलोरी सरप्लस में जाओ. नाउ अगेन डिपेंड्स कि आपने फैट गेन करना है या मसल गेन करना है. नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आपने मसल गेन ही करना है. यू हैव टू डेवलप मसल्स एंड यू हैव टू लुक strong and nice and sturdy, so I get it. One thing that you have to do is start weight training. Of course अभी lockdown है, gyms नहीं खुले हैं, and I know there's a lot of restriction, and you can't do all those things as of now. Start with body weight training. You'll find a lot of videos on YouTube for body weight training. At least get the stamina and build up your stamina and prepare your body for the next step, which is the hardcore weight training that you'll be doing in the gym. And increase your protein intake. Protein बहुत important है, अपने हर मील में प्रोटीन लें. BMI वगैरह इतना कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू नो एटलीस्ट व्हाट इज़ योर बॉडी वेट एंड हाइट, एंड अकॉर्डिंगली derive the results of your protein requirements on a daily basis when you're gaining muscles. So उसके according try to add a lot of protein sources, lean protein source and other protein powders if you want. अगर आप normally eggs and अंडे and chicken वगैरह खा के अपना protein intake पूरा नहीं कर पा रहे हैं. और मैं यार फ़ैन स्विच ऑफ कर देती हूँ, मुझे अभी थोड़ी देर पहले बहुत गर्मी लग रही थी, सो आई स्विच्ड ऑन द फ़ैन, बट आई थिंक आई शुड स्विच इट ऑफ बिकॉज आवाज़ आ रही होगी, डिस्टर्बेंस आ रही होगी. So next question is, I want to become slim. It's not a question, a compliment plus a question. So I want to become slim and have rock body as you. I really biggest fan of you, Anjali ma'am. Love you. Thank you so much for loving me, and thank you so much for showering your love on me. As far as becoming slim is concerned, तो guys एक चीज़ गांठ मान लो. जैसे हमें हमारे माइंड को पता होता है ना, हमारे ब्रेन को पता है कि मेरे को भी भूख लगी है, तो मेरी भूख कैसे मिटेगी? खाना खाने से मिटेगी. ऐसे ही आई हैव टू नो, इफ़ आई हैव टू गेट स्लिम देन आई हैव टू बी इन कैलोरी डेफिसिट. आई हैव टू फॉलो अ हेल्दी lifestyle, from eating to eating habits to waking up habits to having a good sleep to having all the nutrition from macros and micros, everything included. So ये चीज़ें बेसिक हैं और हमें अब तक पता हो जानी चाहिए कि हमें कैलोरी डेफिसिट में ही रहना पड़ेगा अगर हमने वेट लूज़ करना है, फैट लूज़ करना है. तो ड्रिंक लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ वाटर. How can I join you? I am Ankit Chaudhary.
how do you want to join me? Like, you want to work out with me, or you want to get on a plan with me? So if you want to get on a plan with me, you can email me at anjali.sehwag18@gmail.com. I will mention the email ID in my description box also. For people who want a personalized diet chart, whether it's a muscle building or fat loss, whatever you want, you can email me and I will get in touch with you as soon as possible. How to lose the fat from thighs and tummy and back? Okay guys, this is the last question that I'm taking and I will cover as much as I can. और इसके साथ साथ और 2-3 चीज़ें मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगी. How to lose the fat from thighs, tummy and back. First thing first, there is nothing called spot reduction. ठीक है, समझ में आ गया आपको? अगर मेरे को ये मेरे आर्म्स मोटे हैं, now these are hereditary, I know there is a lot of fat here, but I don't have control, over my body कि मैं कहाँ से fat lose करूँगी. One thing I can really do here is that I can train that body part at max two times a week. That is the most that I can do. A lot of weight training is gonna help you do that. Muscle को tone करने में बहुत ज़्यादा help करती है. But there is nothing called spot reduction, guys. अगर spot reduction होता तो रोज़ arms का workout करके मैं अभी तक अपने arms को 9 या 10 इंच का कर चुकी होती है. वाला मेरा 13 inches था अभी मैंने लास्ट देखा. From 16 I have come down to 13. For all of you who don't know, I'm on a fat loss journey. I'm still here with you, struggling with you, and trying to teach you from my learnings, not your learnings, from my learnings. And jitna ho sakta hai, I really want to help you all, motivate you all to be on this journey, to be the best version of yourself, and to enjoy life to the fullest, to adapt a healthy lifestyle जिसमें हम सब कुछ खा पी भी सकें. अपना ऐसा होता है ना, मन मार के हम कुछ चीज़ कर रहे हैं, वो भी हमें ना करनी पड़े. मैं आपको इस तरीके से वो नॉलेज दे पाऊँ, ट्रांसफ़र कर पाऊँ कि गाइज देयर इज़ नथिंग कॉल्ड स्टार्वेशन. 3-4 चीज़ें हैं जो मैं बहुत ज़्यादा आपको बताना चाहती हूँ. देयर इज़ नथिंग कॉल्ड स्टार्वेशन. डोंट स्टार्व योर बॉडी. अपने आप को भूखा मत रखो. भूखा रखोगे आपका मेटाबॉलिज्म बहुत स्लो हो जाएगा, आपकी बॉडी फूड को प्रोसेस बहुत स्लोली करेगी, एंड आप जितनी भी मेहनत कर लो, जो भी कर लो, कुछ भी कर लो, आपका फिर आपने फैट लॉस नहीं हो सकता. दैट इज़ दैन इम्पॉसिबल. सो ट्राई टू हैव एटलीस्ट 5 to 6 मील्स अ डे, छोटे मील्स. सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग, पोर्शन कंट्रोल. हमें एक बार में इतनी बड़ी प्लेट भर के नहीं खानी है. वी डोंट हैव टू डू दैट, राइट. हमें जितनी भी भूख है, ट्राई टू लिमिट योर चपाती इनटेक्स टू मे बी 2 chapatis at a time, or having 150 to 200 grams of rice at a time, not more than that. भूख लगती है, उसके 1-1.5 घंटे बाद कुछ और खा लो, कुछ भी और हेल्दी स्नैक खा लो, ऑप्शन खा लो, कोई सब्जी खा लो, कोई सैलड खा लो, कुछ भी खा लो. बट उस टाइम पे बोलते हैं ना कि बोलते हैं कि सैलड बहुत हेल्दी है, बट दैट डज नॉट मीन कि मैं 600 कैलोरीज की सैलड ही खा जाऊँ, राइट. हमें हर चीज़ को पोर्शन कंट्रोल करना है, हर चीज़ को अच्छे से डिवाइड करना है, एंड दैट इज़ हाउ वी हैव टू मेक श्योर कि वी आर ईटिंग राइट, वी आर ईटिंग इन अ कंट्रोल्ड पोर्शन, एंड वी आर गिविंग ऑल द बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स टू आवर बॉडी. ये 2 चीज़ें. तीसरी चीज़ मोटिवेशन और कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है. इफ़ यू थिंक कि ओवरनाइट, मतलब 2 दिन मैंने डाइट कर ली तो मैं पतली हो जाऊंगी, या मैं पतला हो जाऊंगा, या मेरी मसल मास बन जाएगा, या मेरी बॉडी बन जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होता है. आपने इस जर्नी पे रहना है. यू हैव टू बी कंसिस्टेंट. यू हैव टू फॉलो योर regime very seriously, very religiously. Treat it as important as eating food, as important as brushing your teeth. So it is equally important. So ऐसा नहीं होना चाहिए कि 2 दिन रिजल्ट्स नहीं आए तो तीसरे दिन वी आर बैक ऑन द सेम जर्नी, हम कुछ भी जंक खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. फोर्थ थिंग हियर इज़ अपना शुगर इनटेक को थोड़ा लिमिट करें, बिकॉज हमको पता है ऑलरेडी कार्ब्स भी शुगर का ही, ग्लूकोज का ही फॉर्म होता है, एंड ऑफ कोर्स देयर इज़ अ इंसुलिन लेवल स्पाइक व्हेन एवर वी इनटेक सिंपल कार्ब्स. बेसिकली जब हम खाते हैं तो इंसुलिन लेवल एकदम से स्पाइक कर जाता है. तो ट्राई एंड मेक सम चेंजेस इन योर ईटिंग हैबिट्स ऑल्सो. सिंपल की बजाय कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाओ. फॉर एग्जाम्पल वाइट राइस बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है, तो अगर रात को खाने हैं तो ट्राई एंड हैविंग वाइट राइस देन ब्राउन राइस, बिकॉज ब्राउन राइस को डाइजेस्ट होने में थोड़ा टाइम लगता है. तो ब्राउन राइस आप ट्राई करें कि आप दिन में खा लें. सो नो, दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स दैट यू नीड टू नो. और ये बहुत सारी ऐसी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जो मैं अपने फैट लॉस प्रोग्राम में भी आप सबको बताती हूँ और बताती रहूँगी, जो कि बहुत हेल्पफुल होती हैं, जिससे कि आप जो मन में आए खा सकते हैं और अपने आप को स्टाफ भी नहीं कर सके. मतलब ऐसी कोई सिचुएशन नहीं आएगी कि आपको अपने आप को स्टाफ करना पड़े.
तो आज के लिए मैं इतने क्वेश्चंस ले रही हूँ, आप लोग के भर भर के क्वेश्चंस आए, एंड थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी ऑल द क्वेश्चंस एंड गिविंग मी दिस opportunity to be able to help you all and to guide you all a little bit, to be able to motivate you all a little bit if I could. इसी के साथ मैं ये वीडियो यहीं पे ख़त्म करती हूँ, आज थोड़ा सा लंबा हो गया है, एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। जाने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा इंस्टाग्राम आईडी है अंजलि सहवाग, वहाँ पर मैं रेगुलरली अपडेट करती रहती हूँ मेरा रूटीन क्या है। सो इफ़ यू वांट टू फॉलो समवन हु इज़ रियली कंसिस्टेंट, बिकॉज आई एम एंड आई एम प्राउड ऑफ इट दैट आई एम कंसिस्टेंट, एंड विच इज़ वाई आई एम एबल टू सी रिजल्ट्स ऑल्सो। तो यू कैन फॉलो मी एट अंजलि सहवाग एंड यू कैन नो कि मैं कब नया वीडियो अपलोड कर रही हूँ और कब क्या कर रही हूँ, बिकॉज आई पोस्ट वेरी फ्रीक्वेंटली ऑन माई इंस्टाग्राम चैनल ऑल्सो। और जाने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करो, और मुझे पता है आपको वीडियो बहुत पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें, और अपने अगर और कोई क्वेश्चंस है तो मुझे कमेंट सेक्शन में नीचे ज़रूर बताएं। इसी के साथ मैं आपसे लेती हूँ विदा, मतलब जा रही हूँ, बाय बाय। कल के वीडियो में मिलूंगी आपसे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल।